Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. So, we have already studied all of the pressures we are gonna study in this class, right? सो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी कर चुका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टडी कर चुका है, हम लोगों ने नॉर्मल प्रेशर के बारे में सीख लिया है, राइट? किस तरीके से एरिया पे डिपेंड करता है, किस तरीके से फोर्स पे डिपेंड करता है, एंड देन वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट द लिक्विड प्रेशर, राइट? आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ, ठीक है? मतलब ये पास्कल्स लॉ क्या होता है, कैसे यूज़ आता है और रियल लाइफ में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट? एंड दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस वुड बी वेरी मच हेल्पफुल बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? एंड डेफिनेटली आप लोग ये बात तो जानते ही है कि हम लोग स्टडी करते हैं किस चीज़ के लिए, हम लोग स्टडी करते हैं अपनी स्कूल एग्जामिनेशंस के लिए, साथ ही साथ हम लोग स्टडी करते हैं जो ओलंपियाड्स लेवल एजुकेशन है, ठीक है, उसके लिए भी। तो आप अगर इन क्लासेस को देख रहे हैं, अगर आप इन क्लासेस से स्टडी कर रहे हैं तो इससे आप स्कूल एग्जामिनेशंस को भी क्रैक कर पाएंगे, साथ ही साथ आप ओलंपियाड लेवल की स्टडीज़ को भी जो है नॉलेज गेन कर पाएंगे और उन एग्जामिनेशंस को क्रैक कर पाएंगे, राइट? तो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल, राइट? और यही चीज़ हम लोग टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइफ पर हम लोग करते हैं, राइट? वी ऑल्सो प्रोवाइड यू द नॉलेज ऑफ द फ्रॉम द कोटा सिटी, राइट? एंड डेफिनेटली अप टू द लेवल जिससे आप लोग ओलंपियाड्स क्रैक करने में काबिल हो सके, राइट? तो दैट्स व्हाट आवर एम इज़, राइट? वी शुड नॉट लीव एनी चाइल्ड बिहाइंड, सो दैट्स व्हाट वी डू हियर. If you want any DPP or study material, you can definitely access it through our Telegram channel. What you have to do is to write TTB08 over there on the Telegram app. Then you can access the DPPs and study material over there, right? So it is very much easy. You can do it right now. And you can see this is the awesome team which is very much doing hard work for you all so that you can crack all the examinations coming in your life or decided by you that you want to fight that exam, right? So this is the team which will be helping you in achieving your goals, you achieving your targets and all the things, right? And that's why we are here, to help you in achieving all your targets, right? That's why we are here only. Now see, we have prepared some packages for the people, for the students who really want to do this, right? Studying is good, studying is important, right? But in a particular direction, in a particular way, in an organized way, testing yourself very much frequently, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसी पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ पैकेजेस ड्रॉ किए हैं, ठीक है, बनाए हैं. नॉट दी ड्रॉ बट येस वी प्रिपेयर्ड समथिंग. For that you have to go on this website, you have to go on www.talkingtextbooks.in. All right, this is the website of ours, right? And you can see here these type of packages will be available to you. And there are two types of packages. Number one is the whole package in which you are getting all the study material to get your doorstep, and you will be getting bi-weekly quizzes. All right, that means you will be attempting them every week. Every week you will be testing twice, and definitely periodic test papers after very much few days you are getting periodic test papers, right? And you will be getting the homework submission feature. That means you have to do your homework, then you have to submit there and we'll be checking that. So that is a very much encouraging factor for you so that you can do your homework, right? And the third thing and the last thing, not the third, last thing is that you will be getting the recorded and live classes. So that is very much good कि बहुत अच्छा है कि आपको इस तरीके की जो classes हैं वो provide की जा रही हैं so that you can study, right? And you will be testing yourself every few times, twice a week, and also every few days, right? So that is a very must thing. And all such thing will be leading you towards your goals, towards your targets. You can crack any examinations if you study with us, if you stick with us. That would be very much beneficial for you, right? The second type of packages we have prepared for you is the test series package. That means some people जो होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत पढ़ते हैं, राइट? उन्हें सब नॉलेज होता है, बट इफ़ दे वांट टू टेस्ट देमसेल्व्स कि भाई उनको कितना आता है, वेयर दे स्टैंड, रियली में उन्होंने कुछ गेन किया है या नहीं, तो they should definitely test themselves for that. And that's why we have created some test series packages for you all. You can definitely join them, and what you will be getting is you will be getting bi-weekly quizzes, periodic test papers, and recorded and live classes for the test series, right? If you want 30% discount on both the packages, either on this or this, then you can definitely write the code CY Live.
All right, if you write this code CY Live, CYLIVE, all right, if you write this code, then you will be getting 30% discount on any of the packages you buy from the Talking Textbooks, right? That would be very much beneficial. You just need to write this code, you just need to get that 30% discount and then start studying fully, right? So just do hard work and that's it. If you have any query regarding anything like what are the packages, what are the features, should you join them or not, so that is the thing. You should definitely call us on this number. You can see this number. So you can definitely call us on this number and all your queries will be resolved by us. So you don't have to worry anymore. You just have to call us and tell us your query. That's it, all you have to do. Right? Now let's move on to the next thing. Promise. You have to promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising them on the daily basis. Look, revision is the key, right? अभी से हम लोग revision करते चलेंगे तो हम लोग end time तक बहुत अच्छे से prepare हो जाएंगे और final examination के time हमको कोई pressure भी नहीं रहेगा, कोई stress भी नहीं रहेगा, right? So that would be very much good for you all. Now let's start the chapter, that is the Pascal's law. All right. Now see what is the Pascal's law is saying. क्या statement है? Pascal's law क्या होता है, right? देखेंगे जब कभी हम लोग किसी भी एक लिक्विड को, राइट, कोई भी आप लिक्विड लें और उसको क्या करें, लेट्स से आप बहुत प्लास्टिक की बॉटल आप लें, राइट, एंड उसके अंदर पूरा फुल कर दे लिक्विड से, पानी भर दे उसके अंदर, तो दैट वुड बी गुड. उसके बाद जब आप बॉटल को दबाते हैं, हल्का सा भी दबाते हैं, तो क्या होता है, पानी दोनों तरफ से जो है डिस्प्लेस होता है. And this is the only thing what we are going to study in the Pascal's law. देखेंगे Pascal's law का मेन इंपॉर्टेंट एम्फेसिस यही है कि जब कभी भी एक लिक्विड को हम एनक्लोज कर देते हैं, दैट मीन्स हम चारों तरफ से उस लिक्विड को कवर कर देते हैं, ऑलराइट, एंड उसके बाद अगर हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो क्या होगा, वो फोर्स पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, उस पूरे एनक्लोज लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ऑलराइट, द थिंग इज, देखेंगे ये जो ब्लू कलर का है ना, ये ब्लू कलर का पूरा लिक्विड है, ऑलराइट, एनक्लोज्ड लिक्विड है, दैट मीन्स ये बाहर नहीं जा सकता, पूरी तरीके से कवर है ये लिक्विड. क्या हो रहा है फिर, जैसे ही यहाँ से प्रेशर लगाया गया, पूरे लिक्विड में जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ऑलराइट, एंड दिस इज द पास्कल्स लॉ. पास्कल लॉ यही कहता है कि जब कभी भी हम एक एनक्लोज्ड लिक्विड में प्रेशर या फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो पूरे के पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ठीक है, यही पास्कल्स लॉ बताना चाहता है. देखेंगे उसका जो स्टेटमेंट है, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, वो ये कहता है, द प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन एनक्लोज्ड लिक्विड, किसी भी पॉइंट पे आप प्रेशर अप्लाई करें, लेकिन एनक्लोज्ड लिक्विड के किसी भी पॉइंट पे कर सकते हैं, is transmitted in all directions throughout diminishing the liquid. इसका मतलब सभी डायरेक्शन में जाएगा, पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो आप जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगे किसी भी पॉइंट पे, वो पूरे प्रेजेंट लिक्विड पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट. तो दैट इज द ओनली पास्कल्स लॉ. ठीक है, बस उसके अलावा और कुछ भी नहीं होता. लेकिन ये जो चीज़ बोली गई है पास्कल्स लॉ में, हम इसको कहाँ पर यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, कहाँ अप्लाई करते हैं हम इसे अप्लाई करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स पे. देखेंगे hydraulic machines such as hydraulic press, hydraulic jack and hydraulic brakes are based on Pascal's law of transmission of pressure in liquids. तो that means hydraulic वाली जो भी चीज़ें हैं ना, hydraulic press, hydraulic jack है ना, ये सभी चीज़ों में पास्कल्स लॉ को यूज़ किया जाता है ताकि जो है इनको हम वर्किंग बना सके. एंड हम लोग इसका भी डिस्कस करेंगे कि भाई जो हाइड्रोलिक जैक होता है, हाउ डज इट वर्क. ठीक है, वो भी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से काम करता है. बट फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जब कभी भी क्या होता है, जब कभी भी आप एक एनक्लोज्ड लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो प्रेशर पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा, पूरे लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, सो देयर इज़ नो नीड टू वरी एनी मोर, बिकॉज इसका जो एप्लीकेशन है वो हम ऑलरेडी अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक जैक. ठीक है, अब हम लोग स्टडी करते हैं कि ये जो पास्कल्स लॉ है उसका क्या प्रिंसिपल है.
क्या ऐसा उसका जो प्रिंसिपल है जिसकी बेसिस पे हम लोग इसको यूज़ कर सके, ठीक है, रियल लाइफ में। तो आप देखेंगे कि उसका जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है, द प्रिंसिपल, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, ऑफ ईच हाइड्रोलिक मशीन इज दैट, क्या है, a small force applied on a smaller piston is transmitted to produce a large force on the bigger piston. Now you can see here, जो छोटा ये छोटा पिस्टन है, ठीक है, दिस इज द स्मॉल पिस्टन एंड दिस इज अ वेरी बिग पिस्टन, राइट। इसके इतना बड़ा पिस्टन है कि इसके ऊपर एक कार भी रखी जा सकती है, इतना बड़ा पिस्टन है। नाउ यू कैन सी हियर कि जब कभी भी इस छोटे पिस्टन पर स्मॉल फोर्स लगाया गया, ठीक है, जस्ट अ स्मॉल फोर्स, वो जब लगाया गया तो उससे क्या हुआ, इससे प्रेजेंट जितना भी प्रेशर क्रिएट होगा वो पूरा का पूरा प्रेशर इस लिक्विड में डिस्ट्रीब्यूट होते होते चला जाएगा एंड दिस विल क्रिएट अ लार्ज फोर्स, और वो इतनी बड़ी कार को भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा देगा। सो दैट मीन्स कि आप छोटे से फोर्स को अप्लाई करके भी बड़ी सी कार को आप उठा सकते हैं, जो कि नॉर्मली इज इट नॉट पॉसिबल। मतलब इस फोर्स से कार को उठाना इज नॉट पॉसिबल, बट अगर हम इस प्रोसेस के थ्रू अगर ऐसा करते हैं, मतलब लिक्विड जो है, इनक्लोज लिक्विड जो है सिस्टम प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद छोटा फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके बाद जाके ये लार्ज फोर्स में कन्वर्ट होगा, तब ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल कि आप छोटे से फोर्स से किसी बड़े चीज़ को उठा सको, ठीक है, एंड दैट इज़ द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर दी पास्कल्स लॉ। और उसी का क्या एग्जाम्पल है जहाँ पर हम हाइड्रोलिक मशीन्स को यूज़ करते हैं, राइट। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल एंड दी प्रिंसिपल। तो आप इस प्रिंसिपल को नोट करो। इस प्रिंसिपल का सिर्फ इतना सा ही मीनिंग है कि आप छोटे से फोर्स से भी बड़ी सी फोर्स को क्रिएट कर सकते हो, राइट। यू कैन क्रिएट अ बिग फोर्स जस्ट बाय अ स्मॉल फोर्स यूजिंग पास्कल्स प्रिंसिपल। सो इट इज़ वेरी मच गुड, है ना। हम लोग ईजीली इस तरीके से अपना काम जो है ईजी बना सकते हैं। जनरली मैकेनिक्स की शॉप पे इस तरीके की चीज़ें आपको देखनी होंगी, जहाँ पे कार वॉशिंग होता है या फिर कार रिपेयरिंग होता है, राइट। तो वहाँ पर आपको हाइड्रोलिक मशीन्स देखने को मिल सकती हैं। सो इफ़ एवर कभी भी आप विजिट करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट, राइट। चलो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रिंसिपल है जो हमने अभी पढ़ा, ये एक्चुअली में कैसे काम करता है मैथमेटिकली, किस तरीके से ऐसा पॉसिबल होता है, आखिर क्यों ऐसा होता है कि भाई स्मॉल फोर्स लगाने पे लार्ज फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, बल्कि ऐसा कभी रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं होता। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस प्रोसेस, वो हम लोग अभी स्टडी करते हैं। ऑलराइट, नाउ सी, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक हाइड्रोलिक मशीन को जो है ड्रॉ किया है, ठीक है, एंड वी विल बी प्रिपेयरिंग दिस होल मैकेनिज्म। देखेंगे टू सिलेंड्रिकल वेसल्स P एंड Q, देखेंगे दिस इज द P सिलेंड्रिकल वेसल, दिस इज द Q बड़ा वाला सिलेंड्रिकल वेसल, राइट। सो आपने इन दोनों को प्रिपेयर किया है, कनेक्टेड बाय अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब R, और क्या किया है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, और उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये कुछ U शेप का जो है ट्यूब टाइप का बन गया है, राइट। सो दिस इज व्हाट वी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट, द वेसल्स कंटेन अ लिक्विड और वाटर, आप वाटर भी ले सकते हैं और एनी लिक्विड यू कैन टेक, एंड दे आर प्रोवाइडेड विद वाटर टाइट पिस्टन्स A एंड B। अब क्या किया, जो P है, सिलेंड्रिकल जो पाइप है हमारा P, उसके ऊपर हमने पिस्टन A को अप्लाई किया, ठीक है। पिस्टन A मतलब जो जिससे हम लोग फोर्स अप्लाई कर सके, राइट। इट्स अ लिड, वी कैन से इट्स अ लिड, लेकिन ऐसा लिड जिससे हम प्रेशर अप्लाई कर सके। दूसरे तरफ Q वाला जो ट्यूब था, वहाँ पर हमने क्या किया, बिग पिस्टन लिया, पिस्टन B, ठीक है, पिस्टन B एंड पिस्टन A को हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, राइट। अब देखेंगे, लेकिन ये जो पिस्टन्स हैं ये टाइट पिस्टन्स हैं, इनसे लिक्विड बाहर नहीं आ सकता, बट वी कैन अप्लाई फोर्स, ठीक है, इस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। अब देखते हैं हम लोग, द वेसल P इज ऑफ स्मॉलर डायमीटर देन द वेसल Q। देखेंगे ये जो P है वो बहुत ही छोटा है इन कंपैरिजन टू Q, और यहाँ पे डायमीटर की बात हो रही है, दैट मीन्स इट इज सिलेंड्रिकल, राइट। सिलेंड्रिकल मीन्स सर्कुलर है इसका पिस्टन, एंड पूरा ये जो पाइप है ये पूरा सिलेंड्रिकल पाइप है, और इसका जो पिस्टन है दैट इज दी पिस्टन इन दी सर्कुलर शेप, राइट। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है दैट सर्कुलर शेप जब बोली गई, इसका मतलब हम डायमीटर उसका लेंगे। एंड व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर शेप, लेट मी टेल यू, this is the circular shape and this is the diameter,
ठीक है, तो ये अगर सर्कुलर शेप होगी तो दिस इज द डायमीटर, मतलब द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर, ये जो लाइन है ये जो सेंटर से जा रही है, दिस इज द डायमीटर, राइट। एंड यहाँ पर जो डायमीटर है पी का वो बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू द डायमीटर ऑफ पिस्टन क्यू, नॉट पिस्टन बी, राइट। सो दैट मीन्स जो पी वेसल है और जो क्यू वेसल है, पी वेसल बहुत छोटा है, छोटे डायमीटर का है, क्यू वेसल बहुत ही बड़े डायमीटर का है, राइट। तो उसका एरिया भी ज़्यादा होगा क्योंकि डायमीटर ज़्यादा है, राइट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वेसल पी बी A1 एंड दैट ऑफ द वेसल क्यू बी A2। अब देखेंगे यहाँ पर ये जो एरिया A1 बोला जा रहा है, ये जो A1 एरिया बोला जा रहा है, ये जो एरिया है वो किसका एरिया है, पिस्टन का एरिया है। सो इफ दिस इज द शेप ऑफ द पिस्टन, अगर ये जो सर्कुलर शेप आप देख रहे हैं, इफ दिस इज द शेप ऑफ द पिस्टन, तो देखेंगे कि ये वाला जो एरिया होगा, इस पूरे सर्कल का जो एरिया होगा, दैट वुड बी एरिया ऑफ पिस्टन पी, मतलब इस पी पर जो पिस्टन लगा हुआ है उस पिस्टन का जो एरिया होगा दैट वुड बी A1, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके का सर्कुलर एरिया होगा, राइट। इसी तरीके से जो Q है, ठीक है, उसका एरिया A2 हम लोगों ने बोला, राइट। सो दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ठीक है। तो एरिया A1 इज मच स्मॉलर देन A2, ठीक है। लेट द एरिया, चलो हम लोगों ने एरिया पढ़ लिया है, राइट। Now let's talk about the other thing. A weight is placed on the piston A. अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने इस पिस्टन A पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, एक वेट रखा, राइट। तो दैट मीन्स हमने एक फोर्स अप्लाई किया है पिस्टन A पे। अब क्योंकि ये फोर्स अप्लाई किया है तो ये पूरा का पूरा लिक्विड के थ्रू आउट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ऑलराइट। एंड सी व्हाट हैपेंस, देखते क्या होता है। इट एक्सर्ट्स अ फोर्स F1 ऑन द पिस्टन A। तो हम जो वेट इसके ऊपर रखेंगे पिस्टन A के ऊपर, वहाँ पर क्या होगा, F1 फोर्स जो है अप्लाई होगा। सो दिस इज द फोर्स, दिस इज द F1 फोर्स ऑन द पिस्टन, दिस इज द F1 फोर्स ऑन द पिस्टन, ठीक है, ऑन पिस्टन A ओनली, ठीक है। अभी हम सिर्फ छोटे पिस्टन की बात कर रहे हैं, ठीक है। छोटे पिस्टन के ऊपर हमने F1 फोर्स को अप्लाई कर दिया है एंड द एरिया इज A1, ठीक है, ऑलराइट। अभी हम देखते हैं therefore the pressure applied on the piston A is P1। चलो अब मुझे तुम बताओ, खुद से ही बताओगे तुम लोग कि यहाँ का एरिया है A1, ठीक है, और हमने फोर्स कितना लगाया है F1, तो व्हाट वुड बी द प्रेशर, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा F1 डिवाइडेड बाय A1, ठीक है। दिस वुड बी द प्रेशर, जितना आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड जो एरिया इन कॉन्टैक्ट है, दिस इज द प्रेशर, राइट। जब हम फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करते तो वी गॉट द प्रेशर। सो दैट्स हाउ आई कैलकुलेटेड द प्रेशर ऑन द पिस्टन A, ऑलराइट। तो हमारा जो प्रेशर P1 है दैट इज F1 अपॉन A1, ठीक है। Now let's talk about, according to Pascal's law, the pressure exerted on piston A is transmitted through the liquid टू पिस्टन बी। अब क्या होगा, ये जो प्रेशर हम लोगों ने अप्लाई किया है ये पूरा का पूरा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द फ्लूइड, राइट। तो इट वुड बी थ्रू आउट द फ्लूइड, जो है पूरा आपको इफेक्ट, पूरा जो प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, राइट। सो आप बोलेंगे दस द अपवर्ड प्रेशर एक्सर्टेड ऑन पिस्टन बी इज, क्योंकि अब देखेंगे यहाँ से तो हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे थे और वो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होके अब चला गया, राइट। अब क्या होगा, ये जो लिक्विड यहाँ प्रेजेंट होगा, जहाँ पे यहाँ पे प्रेशर जो है उसको मिला है, तो ये प्रेशर इस पिस्टन को ऊपर की तरफ जो है उठा देगा, राइट। सो क्या होगा, जब हम उसका प्रेशर लिखेंगे तो दैट वुड बी हाउ मच, P2, ठीक है, एंड दैट वुड बी F2 डिवाइडेड बाय A2, ठीक है। तो ये हमको प्रेशर मिलेगा ऑन पिस्टन B, ठीक है, ये हमको प्रेशर मिलेगा। देखेंगे अब आप लोगों ने देखा, जैसे ही हम लोगों ने P1 और P2 का जो प्रेशर है उसको हम लोगों ने जब डिसाइड कर लिया कि भाई ये होगा, नाउ यू नो दैट बोथ द प्रेशर्स आर इक्वल। वाई द प्रेशर्स आर इक्वल, बिकॉज यहाँ पे जो प्रेशर अप्लाई किया गया वहाँ पे भी तो वही प्रेशर गया ना, तो प्रेशर इज सेम।
वही प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वही प्रेशर जो है वहाँ पे ट्रांसमिट हुआ है, राइट। तो दैट मीन्स कि पूरा का पूरा प्रेशर वहाँ तक चले जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स दोनों प्रेशर का वैल्यूज वुड बी द सेम। सो वी कैन राइट P1 equals to P2. So we can also write that F1 upon A1 is equals to F2 upon A2. Alright, तो इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि this is the relation. अगर आपको कभी भी हाइड्रोलिक मशीन के बारे में बोला गया है, ऑलराइट, एंड आपसे पूछा गया है, बहुत तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? लेट्स से F1 स्मॉलर पिस्टल का फोर्स आपको जो है कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, एंड आपको स्मॉलर वाला एरिया, लार्ज वाला फोर्स एंड लार्ज वाला एरिया अगर आपको गिवन होता है, देन यू कैन कैलकुलेट इजीली। इन चारों वैल्यूज़ में से आपको कोई भी 3 वैल्यूज़ गिवन कर देंगे एंड 1 वैल्यूज़ की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सिमिलर वे में मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वन, आप इसको तुरंत नोट करो। चलो अब हम देखते हैं आगे की चीज़ जो कि है हाइड्रोलिक जैक एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। हाइड्रोलिक जैक इज जस्ट हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो दैट मीन्स बिगर ऑब्जेक्ट्स को जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपवर्ड लिफ्ट कर सकते हैं, राइट। सो हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन से अ हाइड्रोलिक जैक इज यूज टू लिफ्टिंग हैवी व्हीकल्स such as cars, trucks, etc. in service stations for their repairing. It works on the Pascal's principle or the principle of a hydraulic machine. तो what does it happen? क्या होता है यहाँ पर कि देखेंगे स्मॉलर फोर्स अंदर इन्होंने क्या सिस्टम बना के रखा होता है वो तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, राइट। एक बहुत बड़ा सा यू शेप का ट्यूब होता है जहाँ पर एक जो ट्यूब है बहुत स्मॉल होता है, दूसरा ट्यूब बहुत बड़ा होता है, ऑलराइट। एंड देन व्हाट हैपन्स, जैसे ही आप स्मॉलर फोर्स लगाते हो वैसे ही क्या होता है, यहाँ से बड़ा वाला पिस्टन ऊपर उठ जाता है एंड जो भी चीज़ इधर कार इधर ट्रक कुछ भी जहाँ पर रखा होगा सो वो इजीली रिपेयर हो सकता है ना। तो दिस इज़ वेरी मच ईजी, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जस्ट वी हैव टू प्रिपेयर द होल सिनेरियो एंड दैट्स इट, ऑलराइट। सो ये हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड वर्क करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कंस्ट्रक्ट हम लोग उसको कैसे करेंगे। जिस तरीके से हमने जो हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक मशीन जब हमने बनाई थी, राइट, तो हाइड्रोलिक मशीन जब हमने प्रिपेयर की थी बिल्कुल सिमिलर वे में भी हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोलिक जैक को प्रिपेयर करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है, नथिंग एल्स, नथिंग चेंज। देखिए अ सिंपल फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक जैक इज शोन इन फिगर, क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स P एंड Q। ये है P सिलेंड्रिकल वेसल, दिस इज द Q सिलेंड्रिकल वेसल, राइट, एंड देन कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ ट्यूब R, एंड दिस इज कनेक्टेड बाय, मतलब दीज बोथ आर कनेक्टेड बाय दिस ट्यूब, राइट। एंड येलो कलर का जो इसमें आप देख पा रहे हैं दिस इज द फ्लूइड, ठीक है। कोई भी फ्लूइड, इधर वाटर इधर एनी फ्लूइड, वो हम लोग फिल कर देते हैं। द पिस्टन A in the narrow cylinder P is attached to a lever and the piston B of the wider cylindrical Q has a platform for lifting the vehicle। देखेंगे यहाँ पर जो पिस्टन A है यहाँ पर तो एक हम लोगों ने क्या लगा रखा है, कोई लिवर लगा रखा है कि जिससे हम क्या कर सके, जो फोर्स है उसको इजीली अप्लाई कर सके। एंड दूसरे तरफ जो दूसरा पिस्टन है उस पर हमने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है ना, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर व्हीकल को हम रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द वेसल्स आर फिल्ड विद द लिक्विड से वाटर, एनी जो है हम लोगों ने इसको फिल कर दिया है। सो दिस इज द होल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाइड्रोलिक जैक, राइट। आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या ध्यान में रखनी है, दीज 2 सिलेंड्रिकल वेसल्स कनेक्टेड बाय अ ट्यूब R, एंड देन व्हाट, आपको क्या करना है, एक यहाँ पर आपको लिवर तैयार करना है जिससे आप फोर्स अप्लाई कर सके, एंड यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है जिसके ऊपर व्हीकल्स और बड़े व्हीकल्स उन सबको हम लोग रख सके, राइट। सो दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रोलिक जैक।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स वर्किंग. इसका क्या वर्किंग है? व्हेन हैंडल एच ऑफ द लीवर इज प्रेस्ड down by applying the effort, the liquid runs out from the cylinder P to the cylinder Q. Now you can see here, ये जो handle H है क्या करता है, जैसे ही हम लोग इस पे फोर्स लगाएंगे तो it will create a pressure and this pressure will be transmitted to here. ठीक है, ये प्रेशर यहाँ से यहाँ आ जाता है. ऑलराइट, और यहाँ पर क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पर अब क्योंकि एरिया है तो दैट मीन्स यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्रिएट होगा एंड इट विल लिफ्ट अपवर्ड्स. और अब ये बड़ा प्रेशर बन चुका है बिकॉज ऑफ द बिगर एरिया. ठीक है, नो, द स्मॉलर प्रेशर विद द बिगर एरिया, सो इट विल क्रिएट अ लार्ज फोर्स बिकॉज देयर इज अ लार्ज प्रेशर. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि आप स्मॉल फोर्स से यानी स्मॉल प्रेशर से एक लार्ज जो फोर्स को क्रिएट कर सकते हैं और बिगर से बिगर ऑब्जेक्ट को भी उठा सकते हैं. राइट, एज अ रिजल्ट द पिस्टन पी राइजेज अप एंड इट रेजेज द कार प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म. जो भी प्लेटफॉर्म पे कार रखी है डेफिनेटली उसको वो रेज कर देगा बिकॉज जो बी पिस्टन है अब वो ऊपर की तरफ राइज करेगा. राइट, व्हेन द कार रीचेज द डिजायर्ड हाइट द हैंडल एच ऑफ द लिवर इज नो लॉन्गर प्रेस्ड. अब जितना हाइट हमें चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग उतना हाइट उसको ले लेते हैं और उसके बाद क्या होता है, जैसे इसको ऊपर किया हाइट अच्छे से पहुंच गई है. राइट, एंड दैट्स इट. अगर हमें उतनी हाइट चाहिए तो फिर हम इसको फिर हैंडल एच को छोड़ देते हैं उसी प्लेस पे. राइट, तो दैट इज़ वेरी मच ईजी. अगर हम लोग पूरा सिस्टम देखते हैं तो इतनी बड़ी कार को उठाना वुड बी वेरी ईजी फॉर अस. राइट, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द हाइड्रोलिक जैक. राइट, तो यू शुड डेफिनेटली नोट इट डाउन बिकॉज दिस इज़ अ गुड थिंग जो कि आपके एग्जाम्स में आती है और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स की भी आती है. ऑलराइट, चलो तो अब हम स्टडी करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड. जो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करता है ये तो हमें पता है कि भाई प्रेशर एक्सर्ट होता है लिक्विड्स के थ्रू, बट उस प्रेशर की क्या वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं ये चीज़ हम लोग देखेंगे. राइट, हम लोगों ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देखी है, किस तरीके से बिहेव करता है, कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, कहाँ पर कम होता है, लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है, जो लिक्विड है अपना खुद का लेवल सीक करता है. राइट, तो दैट इज सो मच द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रेशर. राइट, जो लिक्विड एक्सर्ट करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि लेट्स से हमने एक कंटेनर लिया. ठीक है, दिस इज द कंटेनर. राइट, एंड दिस कंटेनर इज फिल्ड विद अ लिक्विड. ठीक है, लेट्स से एनी लिक्विड और लेट्स से द हाइट ऑफ द लिक्विड इज h. राइट, the height of liquid is h, so we will be writing height of liquid. ठीक है, next thing what we want to know is the density of liquid. So the density of liquid is, let's say d. राइट, d, या फिर हम इसे एक और सिंबल से शो कर सकते हैं डेंसिटी को, उसको हम बोलते हैं रो. ठीक है, या तो आप d से बताएंगे या फिर आप बताएंगे रो से. ठीक है, दिस इज द साइन. इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं RHO. ठीक है, रो. राइट, सो डेंसिटी को हम लोग बताते हैं d या फिर रो से डिनोट करते हैं. और जो चीज़ें हमें चाहिए वो द नेक्स्ट वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वो तो आप सभी को पता ही है ऑलरेडी, दैट इज स्मॉल g. तो ये तीन चीजें हमको मिल गई. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रेशर. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड विल बी
would be equal to h, height of the liquid, rho, density, all right, and acceleration due to gravity g. ठीक है, तो ये ही क्या होगा, द प्रेशर. आपको सिर्फ यही फॉर्मूला जो है रिमेंबर करना है. ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी भी प्रेशर जो है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता. इस कंटेनर का कैसा भी एरिया हो, बेस का जो एरिया होता है ना, कैसा भी एरिया होता है उस पर डिपेंड नहीं करता. ऑलराइट, तो हम लोग मार्क करके लिख देंगे, इट डज नॉट डिपेंड ऑन, it does not depend on the base area of vessel. alright, तो ये चीज़ें जो हैं आपको रिमेंबर करनी है. alright, this is that. बस इतना ही है हम जब पढ़ेंगे लिक्विड का प्रेशर के बारे में. ठीक है, तो आप फटाफट से नोट कर लो. ऑलराइट, तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है, कभी भी आपको कितना ही ज़्यादा जो है ट्रिक आपको करने की कोशिश करेंगे एंड क्वेश्चंस के अंदर आपको तरह तरह का बेस का एरिया आपको गिवन कर देंगे, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है. जब कभी भी आप किसी भी प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, लिक्विड प्रेशर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए. आपके पास क्या होना चाहिए, नंबर 1 हाइट ऑफ द लिक्विड होना चाहिए, राइट. नंबर 2 आपके पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होना चाहिए. नंबर 3 आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. वैसे वो सबको पता होता है, राइट, तो इट इज़ नो बिग डील, बट आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें तो पता होना ही चाहिए. ठीक है, उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भैया एरिया ऑफ द बेस इतना है, व्हीकल जो वेसल है उसका एरिया ऑफ द बेस इतना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नीडेड ही नहीं है हम लोग को. सो वो तो आपको सिर्फ ट्रिक करने के लिए जो है दे दिया है, राइट. सो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज कि भाई जो प्रेशर होता है एक्सर्टेड बाय लिक्विड, दैट नेवर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द वेसल, राइट. सो दैट मीन्स आपको सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं जब कभी भी हम लिक्विड के प्रेशर की बात कर रहे होते हैं तो. ऑलराइट, तो आपने इसको नोट किया फटाफट. उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे. ऑलराइट, एंड देन वी विल बी डूइंग सम क्वेश्चंस. ऑलराइट, तो हम लोग अब हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. नंबर 1, व्हाट इज अ थ्रस्ट, ये हम लोग डिस्कस करते हैं. व्हाट इज अ थ्रस्ट, ठीक है. देखो, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है, द परपेंडिकुलर फोर्स. इसका मतलब अगर हम किसी भी फोर्स का डायरेक्शन फिक्स कर दें कि भाई वो तो एरिया के परपेंडिकुलर ही जाएगा, दैन इट वुड, दैट फोर्स विल बिकम द थ्रस्ट. ठीक है, तो वेन एवर इन वी कैन से वेन एवर you can say a perpendicular force act on any area, then it would be the thrust. ठीक है, सिंपल आपको यही ध्यान में रखना है कि क्या होता है, the total force acting perpendicularly on a given area is called thrust on the area. That means it has to be perpendicular. अगर कोई भी फोर्स लेट्स से परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, लेट्स से वो किसी एंगल पे आप लगा रहे हैं, तो तब वो थ्रस्ट नहीं होगा. ठीक है, दैट मीन्स कि अगर लाइक दिस इज द एरिया एंड फोर्स का डायरेक्शन जो है, लेट मी ड्रॉ दैट अगेन. देखेंगे, दिस इज द एरिया एंड थ्रस्ट इज लाइक दिस परपेंडिकुलर टू द एरिया. ऑलराइट, एंड अगर तो दैट वुड बी थ्रस्ट. ऑलराइट, दैट वुड बी थ्रस्ट. बट अगर आप क्या करें, दिस इज द एरिया और आप कुछ इस तरीके से फोर्स लगाएं, ठीक है, ये अगर एफ है और ये भी अगर एफ है, सो ये फोर्स है. ऑलराइट, एंड इज नॉट थ्रस्ट. ठीक है, ये थ्रस्ट नहीं है. आप फोर्स बोलेंगे, आप एक एंगल पे फोर्स बोलेंगे कि भाई फोर्स अप्लाई हो रहा है ऑन दैट एरिया, दैट मीन्स एट एन एंगल, राइट. लेकिन दिस इज नॉट दी थ्रस्ट. ऑलराइट, दिस इज नॉट दी थ्रस्ट बिकॉज दिस इज नॉट परपेंडिकुलर टू द एरिया. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अदर इंपॉर्टेंट थिंग.
every square centimeter of our body experience a force equivalent to a mass of 1 kg ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब हमारी बॉडी का हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कितना फोर्स जो है जो एक्ट होता है उसके ऊपर एक्ट होता है 1 kg जो फोर्स लगाएगा, दैट मीन्स 1 kg इंटू जी, राइट, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1 kg मास जितना फोर्स लगाएगा हमारे बॉडी पे यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे, इतना जो है फोर्स हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। हमारी बॉडी इतना जो फोर्स है वो डेली एक्सपीरियंस करती है हर एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 1 kg का फोर्स। तो सोचो कितना ज़्यादा है ये, राइट। इफ़ द टोटल प्रेशर ऑन द होल बॉडी इज कैलकुलेटेड, अगर हमारी पूरी बॉडी पे टोटल प्रेशर अगर कैलकुलेट किया जाए, इट वुड बी लार्ज इनफ टू ग्राइंड अस टू अ पेस्ट, और वो इतना ज़्यादा होगा कि हमको वो तुरंत आराम से जो है पेस्ट बना देगा, मीन्स हम लोग रहेंगे ही नहीं। But an equal and opposite pressure due to the flow of blood and other fluids in our body neglects this effect and keeps us feeling comfortable. And I told you that हमारी जो blood pressure है और जो other liquids हमारे अंदर flow हो रहे हैं वो भी एक प्रेशर अप्लाई करते हैं, और वो क्या करते हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे लग रहा है उसको बैलेंस आउट कर देते हैं, और इसी वजह से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वरना हम लोग अब तक पेस्ट बन चुके होते, राइट। तो दिस इज सो मच गुड इन्फो, राइट, क्योंकि आप अब ये समझ पाएंगे कि भाई कितना ज़्यादा प्रेशर जो है हम पे अप्लाई हो रहा है ऑलरेडी, एटमॉस्फेयर ही लगा देता है इतना प्रेशर, तो राइट। अब देखेंगे एक और नई चीज़, अगर आपको पता करना है, लेट्स से दिस इज अ कंटेनर, और दिस इज अ कंटेनर, यहाँ पर जो है इसमें इतना लिक्विड जो है फिल्ड हुआ है, राइट। नाउ यू वांट टू नो कि भाई यहाँ पे इसका जो बेस है, ठीक है, मतलब प्रेशर एट बेस, अगर आप प्रेशर एट बेस कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कैलकुलेट कि भाई ये लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा, प्लस यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। मतलब आप लिक्विड का प्रेशर बता सकते हैं कि भाई लिक्विड इतना जो है प्रेशर अप्लाई कर रही है, बट अगर आप वेसल के बेस पे पता करना चाहते हैं कि वेसल के बेस पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो उस वक्त कौन कौन काम में आएगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से लिक्विड को भी जो है उसके भी ऊपर भी प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के ऊपर, सेकेंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, क्योंकि लिक्विड भी तो उस बेस पर जो है प्रेशर लगा रहा है, तो दैट मीन्स उस बेस पे अगर आप टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना चाहते हैं, सो व्हाट यू हैव टू डू इज you have to first calculate the atmospheric pressure, and then you have to write HDG, that is the liquid pressure applied by this liquid on the base of the vessel, right? So it is so much easy for you all to calculate that, right? All you have to do is to calculate two types of pressure. Number one is the atmospheric, number two is the liquid pressure, and that's it. All right, now this is the question I want all of you to attempt right now, अभी, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसका नॉलेज जो है गेन कर लिया है, so all you have to do is to just do it. सारी वैल्यूज़ आपको ऑलरेडी जो है गिवन है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ गिवन है, all you have to do is to put the values in the formula and then calculate it. बहुत 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 ईजी है ये क्वेश्चन, all right? राइट, तो अभी तक तो कर लिया होगा सभी लोगों ने, है ना। मैं भी आप लोगों को जो है बताती हूँ, देखते हैं किन बच्चों का सही आया और किन का नहीं। सो वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, राइट, दिस इज solution, all right, and we are doing, now see what is the information given here. Calculate the pressure created by a 30-meter depth of water given the density of water is 1000 kg per meter cube and gravity is 9.8 Newton per kg, and this is meter per second square, all right. So you don't have to be confused by the units of the gravitation, right, gravity, or sorry.
So what you have to do is you have to write the depth, right? Height, what is the height of the liquid? 30 meter. All right, then density, what is the density? 1000 kg per meter cube. All right, now let's talk about the gravity. वो कितना है? 9.8 न्यूटन पर kg, and this is similar, these both are meter per second square, so both are equal. Newton per kg and meter per second square are equal. All right, now let's just calculate the pressure. So pressure would be, directly put कर देंगे हम formula में, that is HDG. So that means it would be 30 into 1000 into 9.8. All right, so what you have to do is to calculate it with 3. Now 3 8s are 24, right? 3 9s are 27 and 29, right? 1 2 3 4, let's say it's gone by that. 1 2 3. So this is the pressure exerted by the liquid, right? This is the pressure exerted by liquid, and we will be writing here the unit Pascal. Do not ever forget to write the unit. Every single time you have to write the unit, right? अब देखेंगे यहाँ पर जो है हमने कैलकुलेट कर लिया है इजीली. ऑलराइट, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट पुट द वैल्यूज, एंड अब आप फटाफट से जो है इसको नोट कर सकते हैं. ऑलराइट, तो आपका जो आंसर आया होगा वो सबका यही आया होगा, आई होप, अगर किसी ने कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक नहीं किया होगा तो. अगर किसी ने सिली मिस्टेक नहीं किया होगा ना, तो वो इजीली इसको बढ़िया बढ़िया कर सकता है. ठीक है, और देखो आप लोग इसको इजीली, अगर आप इतना बड़ा नंबर नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिख सकते हो उसको? सिंपल 294 स्मॉल के पास्कल. इसका मतलब होता है किलो, एंड दैट शोज यू 1000. तो दिस इज दी 1000. इस 1000 को कन्वर्ट कर दिया है हमने के में, तो यू कैन राइट दिस. ठीक है, तो कभी कभी जब ऑप्शंस आते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वहाँ पर KPA लिखा होता है कभी कभी, राइट? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, उस के का मतलब होता है 1000 एंड दैट्स इट, राइट? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, सभी इसको इजीली जो है कर सकते हैं. तो चलो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ. ठीक है, डू दिस क्वेश्चन. पढ़ने से आपको लगेगा बहुत हार्ड है. ऑलराइट, सभी लोगों ने कर लिया है इसको ट्राई, तो अब लो हम भी करते हैं. ऑलराइट, चलो देखेंगे सभी बच्चे. डेंसिटी ऑफ सी वाटर हमको दिया है, राइट? तो हमें डेंसिटी पता चल चुकी है. एंड व्हाट इज दैट? 1025 kg पर मीटर क्यूब. ऑलराइट, सो दिस इज द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर. अब देखेंगे द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अटलांटिक ओशन इज दिस. तो आपको मैक्सिमम जो डेप्थ है, यानी कि आपको हाइट दे दिया गया है 8500 मीटर. ऑलराइट, मीटर जो है दे दिया गया है, एंड आपको जो है कैलकुलेट करना है वाटर प्रेशर. तो मैंने आपको बताया था ना, जब कभी भी आप लिक्विड प्रेशर को कैलकुलेट करते हो तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डेप्थ. दैट्स इट, हाइट एंड डेंसिटी, राइट? सो डेंसिटी मिल गया हमको, हाइट मिल गया हमको, दैट्स इट. जी तो हमें पहले से पता है, बिल्कुल सही बात है. तो हम लोग क्या करेंगे? प्रेशर कैलकुलेट करेंगे फटाफट से. 1025 इंटू 8500 into 9.8. all right, so it will give you almost 854. ठीक है, and it will give you the 1000. 1 2. all right, so it would be this. ठीक है, ये हम यूनिट नहीं लगाना भूलेंगे.
ऑलराइट, तो अगेन जो है हम इसको किलो पास्कल में लिख सकते हैं kPa, ऑलराइट, दैट वुड बी द किलो पास्कल, राइट। तो यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला जो है हम लोगों ने पुट किया है, एंड दैट्स इट, ऑलराइट। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने 1 2 3 4 एंड इसके 2 0, राइट। तो हम लोगों ने जो 2 0 हैं वो हम लोग भूल चुके हैं बेचारे, तो हमें 2 zeros और लगाने होंगे, तब जो ये पास्कल बनेगा। एंड किलो पास्कल बनाने के लिए भी हमको जो है यहाँ पर 3 चले जाएंगे किलो में, तो इट वुड बी 00 एंड देन इट वुड बी किलो पास्कल, ऑलराइट। तो इस तरीके से जो है हमें प्रेशर लिखना होगा, ठीक है। ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन जैसे होंगे आप उसी तरीके से प्रेशर को लिखेंगे, ठीक है। तो इट वुड बी गुड, नाइस, ऑलराइट। तो दैट्स हाउ वी डील विद ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये तो सिंपली प्रेशर को कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस थे, राइट। तो दैट वाज इट, ऑलराइट। एंड लेट्स सी, हम लोग जो है पूरा चैप्टर हम लोगों ने डेफिनेटली कवर अप कर लिया है, ऑलराइट। एंड आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चंस जो है करने शुरू कर देने हैं, सबमिट करना शुरू कर दो फटाफट से। बाई वीकली क्विजेस को अटेम्प्ट करने के पहले रिविजन करना शुरू करो, राइट, दैट वुड बी वेरी मच गुड। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and definitely do not forget to click on the bell icon. So thank you so much.